Hi everyone, hope you are fine. Today we will discuss about the three variable K-map as we already have studied about the three variable K-map basic structure. So this consists of two rows and four columns. So the first row represent the x complement value and the second row represent simple x. Similarly, these four columns represent 0 0 0 1 1 1 and 1 0, and these are the minterms from M0 to M7. So these are total 8 minterms. So start from M0 and end from M7, M0, M1, M3, M2, M4, 5, 7 and 6. Similarly, these are the variable representation of the minterms. So let's suppose we have a truth table. The truth table is given and the output is given. So we have to find out the SOP or sum of minterm expression. So we have 1, 2, 3, 4 minterms for which the value of the output is equal to 1. So we can write down the expression by using these minterms. So this is the M0 minterm, this is M2 minterm, this is the M3 minterm, and this is M6 minterm. So we can write the expression in sum of minterm form by including these four minterms. So the canonical sum of minterm expression has four minterm: 0, 2, 3 and 6. So what's the expression? So if the truth table is given, then we can write the equation in sum of minterm form, and that equation is A complement, B complement and C complement, which represent the M0 minterm, because as we know that in minterms when A or a variable is 0, then we can write it as in a complemented form. So A complement, B complement, C complement, similarly plus M2 minterm, so A complement, B and C complement. So A complement, B and C complement. M3 minterm, which is equal to 0, 1, 1. So A complement, B into C. And M6 minterm, which is equal to 1. So M6 minterm is 1, 1, 0. So A, B and C complement. So these are four minterms that are derived from this output or this truth table. So the minterm present in the expression are mapped to the corresponding K-map cell. It means we have a K-map for the three variable. So it consists of total 8 cells, and these four values are mapped to the 8 cell of the K-map. So the cells representing the four minterms are marked with 1 and remaining cells are marked with 0 or remain unmarked. So if the truth table is given, we can write the expression in sum of minterm form, and if the expression is derived, then we can put the values of these minterm into the K-map. So 0, 3, 2 and 7. So इस K-map के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो 7 minterm 1 है. या तो इसको 0 कर दें, इधर 1 कर दें, या फिर आप ट्रूथ टेबल को चेंज कर दें. लेट्स सपोज मैं इधर 1 कर देती हूँ और इधर 0. सिमिलरली इधर जो वैल्यू है वो 6 की जगह फिर मैं A B इंटू C कर दूंगी. क्लियर? सो हमारे पास 0 पे, 2 पे, 3 पे एंड 7 पे 1 है. सो जब हम अगर हमारे पास ट्रूथ टेबल गिवन हो तो हम ट्रूथ टेबल से सम ऑफ मिनटर्म की फॉर्म में एक्सप्रेशन ड्राइव करके के में वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेंगे तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे? लेट्स सपोज एक तो हमारे पास क्लियर रेक्टेंगल ये बन रहे. रेक्टेंगल हम कैसे बनाएंगे? जो एडजेसेंट 1 होते हैं उनके हम हमेशा रेक्टेंगल बनाएंगे, और हमारे पास रेक्टेंगल में 3 रूल्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हुए रेक्टेंगल बनाएंगे. एक हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा ये. क्लियर? सेकंड, अब हमारे पास दो ऑप्शन है. देखें, एक तो रेक्टेंगल बन गया ये. हमने फर्स्ट में हमने क्या किया,
इस वन को कवर करने के लिए, इन दोनों वन को कवर करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये दोनों वन कवर हो गए। अब हमने इन दो वन को कवर करना है। अगर तो हम इन दो वन को इस तरह से कवर करते हैं, लेट्स सपोज ये, ठीक है, ये दो बन गए रेक्टेंगल। इससे एक अलग टर्म आएगी, इससे एक अलग टर्म आएगी। अब ये वाला वन और ये वाला जो है ये एडजेसेंट है। हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप में क्या होता है कि ये एज अ सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर होती है। इट्स मीन कि जो यहाँ वैल्यूज होती हैं वो एडजेसेंट होती हैं इन वैल्यूज की। क्लियर? जो हमारे पास राइट मोस्ट वैल्यू होती हैं वो एडजेसेंट होती हैं लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज के। सो हम इस वन का अलग से हम रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, बल्कि ये रेक्टेंगल, ये जो वन है ये हमारे पास एडजेसेंट होगा इस वाले के साथ। तो हमारे पास ये वाला जो वन है तो ये वन जो होगा वो इस वन के एडजेसेंट होगा। क्लियर? तो हमारे पास जो था उसमें हमने रूल पढ़े थे, उसमें हमारे पास रूल क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन शुड बी कवर एटलीस्ट वन टर्म इन ईच रेक्टेंगल is unique, that is not in another rectangle, and the size of the rectangle should be in power of 2. so इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हमारे पास दो रूल जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं, बट थर्ड हमारे पास ये है कि हर एक रेक्टेंगल में जो टर्म है, मतलब हर एक रेक्टेंगल में एटलीस्ट वन टर्म यूनिक होनी चाहिए। तो अगर आप इस रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल में ये वाली टर्म यूनिक है, इट्स मीन ये वाली टर्म ऐसी है जो कि किसी और रेक्टेंगल में नहीं है। सिमिलरली आप इस रेक्टेंगल की बात करें तो ये रेक्टेंगल भी यूनिक है क्योंकि इसमें हमारे पास ये वाली जो टर्म होगी यहाँ पे ये किसी और रेक्टेंगल में नहीं है। बट हमारे पास ये वाला जो रेक्टेंगल बना है ये जो है ये यूनिक नहीं है, बिकॉज इसकी एक टर्म जो है वो इस रेक्टेंगल में है और इसकी सेकंड टर्म जो है वो इस रेक्टेंगल में है। इसलिए इस टाइप के जो रेक्टेंगल होते हैं उनको फिर हम रिमूव कर देते हैं। रेक्टेंगल हमेशा हम उन रेक्टेंगल्स को कंसीडर करेंगे या उन स्क्वायर्स को कंसीडर करेंगे जिसमें एटलीस्ट वन टर्म जो है वो यूनिक हो रही हो। इस केस में हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल ऐसा है जिसमें दोनों टर्म जो है वो यूनिक नहीं है। ये वाली जो टर्म है वो इस रेक्टेंगल का पार्ट है और ये वाली जो टर्म है वो इस रेक्टेंगल का पार्ट है। तो इसलिए जो हमारे पास इस तरह के रेक्टेंगल होंगे उसने हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो इन रेक्टेंगल से आएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमारे पास टू टर्म्स होंगी, एक टर्म जो होगी वो इस रेक्टेंगल की वजह से होगी और एक टर्म जो होगी वो इस रेक्टेंगल की वजह से होगी। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास इसका आएगा वो क्या आएगा, f इज इक्वल टू, देखिए हमने क्या करना होता है, जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो राइट करते हैं और जो चेंज हो रही होती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास b एंड c जो है वो कॉमन है। इसमें तीन टर्म्स बन रही हैं, a कम्प्लीमेंट bc और इसमें a b c। सो a कम्प्लीमेंट और a जो है वो वेरी कर रही हैं एंड b एंड c दोनों हमारे पास दोनों सेल में b एंड c वैल्यू है। सो b एंड c वैल्यू का हम राइट करेंगे। सेकंड अगर आप इसमें देखें तो इसमें a कम्प्लीमेंट एंड c कम्प्लीमेंट ये दो वैल्यूज जो हैं दोनों सेल में सेम है, बट b कम्प्लीमेंट और b चेंज हो रही है। सो जो चेंज हो रही हो या जो वेरी कर रही हो उसको रिमूव कर देते हैं और सेम वैल्यू को हम राइट करते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन आएगा ये एक्सप्रेशन हमारे पास किस में होगा, ये एक्सप्रेशन होगा एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। और हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था ये एक्सप्रेशन था हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म में। क्लियर? जो ये वाला एक्सप्रेशन था ये हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में था। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप और बुलियन अलजेब्रिक टेक्निक हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो एसओपी आता है। सो ये हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर आप इसमें कोई भी और टेक्निक यूज कर लें
ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। के मैप से जो हमारे पास, अगर हम के मैप के सही रूल फॉलो कर रहे हैं, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। So these are the three variable K-maps for which the two minterms are 1 at the same time and all other minterms are 0. So let's suppose कि अगर हमारे पास इस एग्जांपल में देखें कि let's suppose हमारे पास M7 and M6 minterm are 1, तो हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, इन दो मिनटर्म को कंबाइन कर लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो a एंड b की आएगी, क्योंकि हम कॉमन वैल्यू लिखते हैं तो इसमें a एंड b कॉमन है, c एंड c कम्प्लीमेंट जो है वो वेरी कर रहा है। सिमिलरली हम m अगर हमारे पास 5 एंड m7 पे 1 होगा तो हम इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दैट इज ac, and if we have m4 and m5 are 1 at the same time तो हम इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे and we have the term after simplification is a and b complement, क्योंकि हमारे पास इसमें a and b complement जो है वो सेम है, बाकी c and c complement वेरी कर रहा है। सिमिलरली अगर ये वाले हमारे पास 1 जो है विच इज m2 एंड 0 1 3 एंड 2 m2 एंड m अगर 6 हमारे पास 1 होंगे तो हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो b एंड c कम्प्लीमेंट आएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से होगा तो b एंड c कम्प्लीमेंट ये कॉमन होगी और a कम्प्लीमेंट वेरी कर रहा है। और अगर हमारे पास एजिस पे लेट्स सपोज ये 1 1 है तो ये एडजेसेंट होंगे और इसमें हमारे पास जो कॉमन टर्म आएगी वो a कम्प्लीमेंट एंड c कम्प्लीमेंट होगी। Similarly, these are the K-maps for the three variable in which four minterms are 1 at the same time. So अगर हमारे पास 4 minterm 1 होंगी at the same time तो वो किस तरह के possible combination बन सकते हैं या कौन कौन सी minterm 1 हो सकती हैं, तो हमारे पास किस तरह से rectangle हम बना सकते हैं। So let's suppose अगर हमारे पास ये है m0 ये 1, ये m3 2 और 7 एंड 6 1 होगी एट द सेम टाइम। लेट्स सपोज हमारे पास ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट फंक्शन है उसमें हमारे पास 2 पे 3 पे एंड 7 एंड 6 पे 1 है। सो हम जो रेक्टेंगल बनाएंगे इन 4 को हम कंबाइन करेंगे। इसमें हम ये नहीं करेंगे कि हम पहले इन 2 को कंबाइन कर लें, इन 2 को अलग से कंबाइन करें और जो हमारे पास ये वाली 2 मिन टर्म्स है इनको अलग से कंबाइन करें। इनका मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा, क्लियर। और उसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट एज वी नो दैट कि हमारे पास जो के मैप से इक्वेशन आनी चाहिए वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए कि उसको फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सके। और हमारे पास जो के मैप में बिल्ड करने का रूल है उसमें ये होता है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कवर करते हैं, जो एडजेसेंट वन होते हैं उन सबको कवर कर लेते हैं। तो ये सारे आपस में एडजेसेंट है इसलिए हमने ये 1 कवर कर ली। सिमिलरली ये 1 जो है वो एडजेसेंट है, हमने इनको कवर कर ली। डायगोनल वाले जो होते हैं वो एडजेसेंट नहीं होते, या तो एक्स एक्सिस पे एडजेसेंट देखते हैं या वाई एक्सिस पे देखते हैं, क्लियर। सिमिलरली हमारे पास अगर ये 1 हो, लेट्स सपोज m1 मिन टर्म m3 m5 एंड m7 मिन टर्म 1 हो तो इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। और हमारे पास जो कॉमन टर्म होगी इसमें हमारे पास कॉमन टर्म क्या थी कि ए एंड ए कम्प्लीमेंट भी चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। इसमें हमारे पास सिर्फ बी कॉमन टर्म है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा, 1 ब्लॉक का रेक्टेंगल बनेगा तो हमारे पास कोई भी मेन वेरिएबल जो है वो कैंसिल नहीं होगा। अगर हमारे पास रेक्टेंगल बनता है, लेट्स सपोज फॉर 3 वेरिएबल की बात कर रही हूँ, रेक्टेंगल बनता है 2 सेल्स का तो हमारे पास एक वेरिएबल कैंसिल होगा। जब 2 सेल का रेक्टेंगल बनेगा तो एक वेरिएबल कैंसिल होगा। अगर हमारे पास 4 सेल का रेक्टेंगल बनेगा तो 2 वेरिएबल्स कैंसिल होंगे, जिससे हमारे पास इसमें ए भी कैंसिल हो गया एंड सी भी कैंसिल हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिन टर्म देखेंगे तो जो कॉमन इन सब में कॉमन जो होगी वो सिर्फ बी होगी। ए एंड ए कम्प्लीमेंट ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड सी कम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेम मिन टर्म कौन सी रहेगी, बी। सिमिलरली इसमें सेम मिन टर्म क्या होगी, ए। बाकी हमारे पास एंड बी एंड बी कम्प्लीमेंट एंड बी, सिमिलरली सी कम्प्लीमेंट एंड सी, ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली इसमें हमारे पास क्या होगी, सिर्फ सी जो है वो वैल्यू कॉमन होगी, बाकी जो है वो वेरी कर रही हैं। सिमिलरली हमारे पास जो रेक्टेंगल होते हैं उसमें हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट जो सेल होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं।
सो हम इनका 4 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये नहीं करेंगे कि इधर 2 का बना लेंगे और ये 2 का बना लेंगे। अगर आप 2 और 2 का बनाते हैं तो वैल्यू आएगी b कम्प्लीमेंट c प्लस b इंटू सी कम्प्लीमेंट। फिर फर्दर हम उसमें से अगर c कम्प्लीमेंट कॉमन लें तो b प्लस b कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1, तो वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। सो इट्स मीन कि हमारे पास c वैल्यू एडजेसेंट होंगी तो हम 4 का सेल बनाएंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास वैल्यू क्या आएगी c कम्प्लीमेंट, क्योंकि a इंटू ए कम्प्लीमेंट ये कैंसिल हो जाएगी और b कम्प्लीमेंट इंटू b ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, सिंपल c कम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास लेट्स सपोज सारी 1 है तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1। अगर हमारे पास ऐसा ट्रुथ टेबल है या ऐसा आउटपुट फंक्शन है जिसमें हर कॉम्बिनेशन के लिए, हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट इज इक्वल टू 1 होगी, तो हम जब मिन टर्म्स इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगा वो हम ये सारे आपस में एडजेसेंट है तो हमारे पास रेक्टेंगल 8 का बनेगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। सो रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल जो होता है वो या तो 1 का रेक्टेंगल बन सकता है या 2 का या 4 का या 8 का या 16 का। 3 5 का रेक्टेंगल नहीं बनते। इट्स मीन कि 3 5 के रेक्टेंगल नहीं बनते कि हम 3 सेल को या 5 सेल्स को कंबाइन नहीं कर सकते। सेकंड क्या होता है कि नंबर ऑफ वंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस शुड बी कवर इन अ रेक्टेंगल। सो अगर सारे एडजेसेंट हो रहे हैं तो सबको कवर कर देंगे, क्योंकि हम जितने नंबर ऑफ वंस को कवर करेंगे उतने ही हमारे पास रेक्टेंगल का साइज इंक्रीज करेगा और जितना हमारे पास रेक्टेंगल का साइज इंक्रीज करेगा उतनी ही नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो रिड्यूस होंगे। क्योंकि अगर सिंगल का रेक्टेंगल था तो कोई वेरिएबल रिड्यूस नहीं हो रहा था, अगर रेक्टेंगल में 2 सेल आ रहे थे तो एक वेरिएबल रिड्यूस हो रहा था, अगर रेक्टेंगल में 4 सेल आ रहे थे तो हमारे पास 2 वेरिएबल रिड्यूस हो रहे थे, और अगर रेक्टेंगल में 8 के 8 सेल आ रहे हैं, 8 सेल हमारे पास रेक्टेंगल में इंक्लूड हो रहे हैं, सो हमारे पास सारे वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। और थर्ड फिर वही था कि हम रेक्टेंगल में देखते हैं कि एटलीस्ट 1 टर्म यूनिक होनी चाहिए जो कि किसी दूसरे रेक्टेंगल में ना हो, बाकी चाहे सारी वैल्यूज ओवरलैप कर ले बट एक टर्म ऐसी जरूर होनी चाहिए जो किसी और रेक्टेंगल में ना हो। सो बाय कंबाइनिंग स्क्वायर वी रिड्यूस द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द प्रोडक्ट टर्म। हम जब स्क्वायर बना रहे होते हैं या रेक्टेंगल्स बना रहे होते हैं तो हम रिड्यूस कर रहे होते हैं नंबर ऑफ लिटरल्स को इन द प्रोडक्ट टर्म। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास अगर 2 सेल का रेक्टेंगल बनेगा तो हमारे पास 1 टर्म रिड्यूस हो जाएगी। सो रिड्यूसिंग द लिटरल कॉस्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द अदर 2 कॉस्ट क्राइटेरिया। सो अगर हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, लिटरल कॉस्ट रिड्यूस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो गेट लेवल पे होती है कॉस्ट या वाइड जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑन अ 3 वेरिएबल के मैप 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट अ मिन टर्म विथ 3 वेरिएबल। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप में अगर हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू, लेट्स सपोज सिर्फ यहाँ सिर्फ इधर 1 हो, ये वाला 1 हो, बाकी ये भी 0 हो, सो इसमें हमारे पास जो टर्म होगी उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। 1 स्क्वायर अगर हमारे पास 1 स्क्वायर बन रहा है, 1 स्क्वायर मीन क्या, स्क्वायर दैट कंटेन सिंगल सेल रिप्रेजेंट अ मिन टर्म विथ 3 वेरिएबल, 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स, 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स और सेल जो हमारे पास 2 सेल को हम कंबाइन कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट टर्म विथ 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल की प्रोडक्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली 4 adjacent terms, अगर 4 adjacent term represent a product term with 1 variable, 4 adjacent term represent a product term with a single variable, and 8 adjacent term is a function of all ones, means के all the variable are cancelled, so हमारे पास final expression 1 आएगा। So K-map simplification of SOP expression, a group must contain either 1, 2, 4, 8 और 16 cell। जो मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो ग्रुप बनता है या जो स्क्वायर बन रहा होता है या जो रेक्टेंगल बन रहा होता है उसमें या तो एक सेल हो या 2 सेल का कंबाइन कर सकते हैं, या 4 को या 8 को या 16 को, 3, 5, 7 सेल्स को हम कंबाइन नहीं कर सकते। ऑलवेज इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस इन द ग्रुप। हम हमेशा जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस को कवर करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एडजेसेंट में
लेट्स सपोज हमारे पास ये सारे वन आपस में एडजस्टेड हैं, तो इन सब का एक ही सिंगल रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे इसका भी एक सिंगल रेक्टेंगल बनाएंगे, इनको हम डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड करने से आंसर हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आता। Each one on the map must be included in at least one group. The ones already in a group can be included in another group as long as the overlapping group include non-common ones. So it's mean कि at least one term जो है वो unique होनी चाहिए in each rectangle या in each group or in each square. So maximize the size of group and minimize the number of groups. अगर हम साइज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। लेट्स सपोज के इस एग्जांपल में अगर हम साइज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज करेंगे, क्लियर, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप सिर्फ एक बन रहा है। अगर हम साइज ऑफ द ग्रुप रिड्यूस कर देंगे, एक ये बना लेंगे और एक ये, उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप जो हैं वो 2 हो जाएंगे। अगर हम साइज रिड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज कर जाएंगे। हम मैक्सिमाइज करेंगे साइज ऑफ द ग्रुप। साइज ऑफ द ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतने हमारे पास वेरिएबल भी कम आएंगे और उतनी हमारे पास टर्म्स भी कम आएंगी। हमारा गोल क्या होता है कि हम मैक्सिमाइज करें द साइज ऑफ द ग्रुप, कि जितने भी एडजेसेंट वन हैं उन सबको कवर कर लें, एंड मिनिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप। जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे उनको कवर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप, के नंबर ऑफ ग्रुप हम कम करें। लेट्स सपोज इसमें अगर हम 1 का बनाते तो हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स बनते या 8 रेक्टेंगल बनते। 2 का बनाते तो टोटल 4 रेक्टेंगल बनते। तो हम 4 का बनाते तो 2 रेक्टेंगल बनते। हमने एक ही रेक्टेंगल बनाया है, हमने मैक्सिमाइज किया है द साइज ऑफ द ग्रुप एंड मिनिमाइज किया है द नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप को अगर हम मिनिमाइज करते हैं, इट्स मीन के नंबर ऑफ टर्म जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ग्रुप से या हर एक रेक्टेंगल से हमारे पास एक टर्म आती है। सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। लेट्स सपोज एग्जांपल है हमारे पास, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स वाई जी। ये बता रहा है कि ये 3 इनपुट वेरिएबल है और समीशन यहाँ हम m यूज कर लेंगे, समीशन m स्मॉल m विच रिप्रेजेंट, अच्छा यहाँ स्मॉल m नहीं आ रहा, उसकी शिफ्ट, क्लियर, हम यहाँ स्मॉल m जो है वो यूज करेंगे। लेट्स सपोज मैं कॉपी यहाँ से कर देती हूँ, क्लियर, समीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट को m जो है वो मिन टर्म 2, 3, 4, 5 हम या तो इक्वेशन सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ट्रुथ टेबल आपके पास गिवन होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इस तरह से हम के मैप बनाएंगे। आपको बेसिक स्ट्रक्चर के मैप का 3 वेरिएबल के लिए आना चाहिए। यहाँ पे आप 0, 1 कर लेंगे, 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। इसको कहेंगे x, x कम्प्लीमेंट, इसको कहेंगे y कम्प्लीमेंट, z कम्प्लीमेंट, y कम्प्लीमेंट z, yz एंड yz कम्प्लीमेंट। क्लियर, जब आप के मैप बनाएंगे ना तो आप उसमें हमेशा जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें आप यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ x कम्प्लीमेंट, या जो भी वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल होगा वो, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आप वो डालेंगे बाकी जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स होंगे। और बाकी आप m0 मिन टर्म, m1 मिन टर्म, m3, m2 सिमिलरली ये आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद इतना तो हमारे पास ये जो था, ये वाला हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आप ये 0, 1 और यहाँ x और x कम्प्लीमेंट और x और ये वाली वैल्यूज, और यहाँ पे आप उनके ऊपर वैल्यू लिख दें, y कम्प्लीमेंट, z कम्प्लीमेंट, ये कर लेंगे। और ये m0 से ये भी, फिर हमारे पास अब वो बता रहे हैं कि 2 पे 1 है, 3 पे, 4 पे और 5 पे। हम 2 को मार्क कर देंगे, 1 3 को मार्क कर देंगे, 1 4 को एंड 5 को। अब इनके रेक्टेंगल बनाएंगे, हमारे पास 2 रेक्टेंगल बनेंगे, एक ये और एक ये। डायगोनल में हम रेक्टेंगल को कनेक्ट नहीं कर सकते। इस रेक्टेंगल से जो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म आएगी विच इज एक्स वाई कम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास x कॉमन है और यहाँ हमारे पास क्या कॉमन है, फर्स्ट वाला y कम्प्लीमेंट कॉमन है। क्लियर, 0 कॉमन है, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, ये x और ये y एंड z।
सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे y और z कम्प्लीमेंट की सारी फॉर्म में लिख लें। इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, x कम्प्लीमेंट इन दोनों में है और 1 और 1 विच इज इक्वल टू y, x कम्प्लीमेंट एंड y कॉमन है। सो इस रेक्टेंगल से जो टर्म आएगी उसका हम सम कर लेंगे विद दिस। तो हमारे पास जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट होगा वो आएगा x कम्प्लीमेंट y प्लस xy कम्प्लीमेंट विच इज द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव OR गेट। सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास ये एक और एग्जांपल है जिसमें 3, 4, 6 एंड 7 पे हमारे पास 1 है। सो हम के मैप बनाएंगे, बेसिक कोई स्ट्रक्चर रहेगा के मैप का कि आपने यहाँ पे x और यहाँ पे x कम्प्लीमेंट और यहाँ पे फिर आप y कम्प्लीमेंट, z कम्प्लीमेंट, y कम्प्लीमेंट, z, y z एंड y z कम्प्लीमेंट कर देंगे और 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 एंड M0 से लेकर M7 तक इसको आप लेबल कर देंगे। उसके बाद आपने 3 पे 1 डालना है, 4 पे 1 डालने हैं, 6 पे एंड 7 पे। अब रेक्टेंगल जो है हमारे पास एक ये रेक्टेंगल बनेगा इस 1 को कवर करने के लिए, दोनों कवर हो गए। अब ये 1 और ये 1 रह गए। सेकंड हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा ये। अगर हम इस तरह से ही रेक्टेंगल बनाएंगे जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो वो रेक्टेंगल जो है वो यूनिक नहीं होगा क्योंकि उसमें हमारे पास दोनों टर्म जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। ये वाली फर्स्ट जो टर्म है वो इस रेक्टेंगल को ओवरलैप कर रही है और सेकंड टर्म जो है वो इसको कर रही है। कोई भी एक टर्म ऐसी नहीं है जो किसी और रेक्टेंगल में ना हो, मतलब कोई भी एक टर्म यूनिक नहीं है। सो इस रेक्टेंगल को फिर हम कंसीडर नहीं करेंगे। इससे हमारे पास दो टर्म आएंगी। इससे जो हमारे पास टर्म आ रही है, देखिए हमारे पास ये वाली जो मिन टर्म बन रही है वो बन रही है एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट, और ये वाली हमारे पास जो मिन टर्म बन रही है वो एक्स वाई एंड जी कम्प्लीमेंट बन रही है। तो इसमें हमारे पास अगर हम दोनों मिन टर्म्स में देखें तो कॉमन हमारे पास कौन सी टर्म है, x एंड z कम्प्लीमेंट। y एंड y कम्प्लीमेंट चेंज हो रही है तो हमारे पास एक जो वैल्यू आएगी वो आएगी x एंड z कम्प्लीमेंट, और हमारे पास इसमें जो कॉमन है वो y और z है। x और x कम्प्लीमेंट चेंज हो रही है एंड y एंड z। सो ये हमारे पास जो आउटपुट होगा वो SOP होगा जो कि सिंप्लीफाइड है। ये POS एक्सप्रेशन था, इसको हमने के मैप की टेक्निक से सिंप्लीफाई किया और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट है वो SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। Similarly, summation m of 0 2 4 5 6, इसमें हम 0 पे, 2 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे 1 डाल देंगे और फिर हम रेक्टेंगल देखेंगे। अब देखें इन 1 को कवर करने के लिए, या लेट्स सपोज पहले यहाँ से देखें, इस 1 को कवर करने के लिए हमारे पास एक तो रेक्टेंगल बन गया है ये, इन दोनों 1s को कवर करने के लिए ये रेक्टेंगल। क्लियर? सेकंड हमारे पास अब ये 1 और ये 1 आपस में एडजेसेंट है तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s को कवर करके रेक्टेंगल बनाते हैं। हम यूं नहीं करेंगे कि हम 3 रेक्टेंगल बना लें, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक इसका, ये, और थर्ड जो है ये वाला। इस तरह से नहीं करेंगे। हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट सेल होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, तो हम इनका एक सिंगल रेक्टेंगल बनाएंगे। हमेशा रेक्टेंगल में हमने हमारा गोल होता है कि हम मैक्सिमाइज करें द साइज ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? उससे क्या होते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाती हैं। सो हम इन 4 को कंबाइन करेंगे। जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो हमने पहले देखा था कि अगर हमारे पास 2 सेल जो होते हैं उनका ग्रुप या उनका रेक्टेंगल बन रहा होता है तो एक वैल्यू रिड्यूस होती है। इसमें कौन सी वैल्यू रिड्यूस होगी? x दोनों में कॉमन है एंड 0 कॉमन है विच इज इक्वल टू y कम्प्लीमेंट। सो हमारे पास एक टर्म जो है वो z और z कम्प्लीमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली इन 4 में जब 4 का होता है तो हमारे पास 2 टर्म्स जो होती हैं वो कैंसिल होती हैं। इसमें हमारे पास x भी कैंसिल हो रही है और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो भी कैंसिल हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे y 1 है, और z जो है z कम्प्लीमेंट 0 0 दोनों सेम है। सो हम कहेंगे z कम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास जो आंसर होगा वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इसमें मैंने स्लाइड्स में पॉसिबल जितनी भी एग्जांपल हैं जो बुक में हैं या जो इंटरनेट पे मैंने सर्च की, तो सारी मैंने पॉसिबल एग्जांपल्स डाली हुई हैं ताकि आपको 3 वेरिएबल का के मैप जो है वो इजीली समझ आ जाए।
अब इसमें हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन है, ये हमारे पास सिर्फ गिवन है एंड एक्स, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस इट इन सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म एंड फाइंड द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो हम पहले एक्सप्रेस करेंगे इट इन सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है ये सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में नहीं है? एज वी नो दैट सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हर एक टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होते हैं। अगर ये 3 वेरिएबल या 3 इनपुट का फंक्शन है तो हर एक टर्म में नंबर ऑफ इनपुट जो हैं वो सेम होंगे, बट इस केस में हमारे पास सिर्फ इस टर्म में नंबर ऑफ इनपुट 3 है, बाकी दोनों टर्म्स में नंबर ऑफ इनपुट जो हैं वो 2 है। सो हम पहले तो हम क्या करेंगे कि आप वही मेथड यूज करेंगे जो मिसिंग वेरिएबल है, इसमें सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे, उस तरह से आप कंबाइन करेंगे। क्लियर? सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट डाल के आप इसको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 5 7। क्लियर? ये वाली मिन टर्म्स जो होंगी उन पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 होगी। इसमें आप करेंगे क्या, यहाँ मिसिंग वेरिएबल क्या है, बी। सो आप बी प्लस बी कम्प्लीमेंट डाल के इसको वो करेंगे, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है, सी, तो यहाँ आप सी प्लस सी कम्प्लीमेंट डालेंगे। इसे इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है, ए, तो ए प्लस ए कम्प्लीमेंट डालेंगे। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें जो टर्म जो होगी वो रिपीट हो रही होगी, उसको आप कैंसिल कर देंगे एक दफ़ा। मतलब अगर दो टर्म्स सेम है तो एक दफ़ा उसको राइट करेंगे, उससे आपके पास एक्सप्रेशन 1 2 3 5 7 इस फॉर्म में आएगा। इट्स मीन कि आपके पास जो यहाँ टर्म होंगी वो M0 M1 मिन टर्म, M2 मिन टर्म, M3 M5 और M7 होगी। उसको जब हम के मैप में पुट करेंगे तो के मैप में पुट करने के बाद ये वाला चीज़ मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में हो तो उसको कैसे हम सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये आप खुद कर लेंगे, इसमें मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हम किस तरह से करेंगे। अब हमने के मैप में वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने रेक्टेंगल बनाने हैं, इन 4 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा और इन 2 का एक रेक्टेंगल। 4 के रेक्टेंगल से जो हमारे पास टर्म आएगी या वेरिएबल जो होंगे प्रोडक्ट टर्म आएगी उसमें एक वेरिएबल होगा, इसमें ए एंड ए कम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो रहा है एंड बी कम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ 1 और 1 वाली वैल्यू विच इज इक्वल टू सी। पहली वैल्यू है बी कम्प्लीमेंट सी एंड बी इंटू सी, तो सिर्फ हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है और इसमें जो कॉमन है वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट कॉमन है और वन कॉमन है विच इज इक्वल टू बी। सो ए कम्प्लीमेंट और बी कॉमन है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो टर्म आएगी वो ये आएगी। सो आप देखें कि सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स एंड नंबर ऑफ गेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास ट्रुथ टेबल गिवन है और इसमें ये आउटपुट गिवन है, इसको इसमें हमारे पास इनपुट जो है उसके वेरिएबल के नेम हमने चेंज कर दिए जे के एल। सो जे फर्स्ट वेरिएबल है तो हम जे कम्प्लीमेंट और जे सिमिलरली के कम्प्लीमेंट एल कम्प्लीमेंट और इस तरह से हम लेबल कर देंगे। क्लियर? तो अब M0 मिन टर्म M1 M0 मिन टर्म M2 3 एंड 5 मिन टर्म जो है वो 1 है, तो 1 पे 2 पे 3 पे एंड 5 पे 1 कर देंगे और रेक्टेंगल हम इसके बनाएंगे। क्लियर? अब इसमें हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, एक तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा ये, क्लियर? अब इस वन को कवर करने के लिए कोई भी एडजेसेंट वन नहीं है, ना यहाँ वन है ना यहाँ वन है ना यहाँ है। क्लियर? तो इस वन का जो रेक्टेंगल बनेगा वो सिर्फ हमारे पास इस तरह से बनेगा। क्लियर? सिमिलरली जो हमारे पास
ये 1 है, इसको हम इस 1 से कवर करेंगे क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट है। हमारे पास सिर्फ एक टर्म एटलीस्ट यूनिक आनी चाहिए हर रेक्टेंगल में, बाकी चाहे सारी हमारे पास टर्म्स जो हैं वो ओवरलैप कर रही हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि ये वाला 1 तो पहले से उस रेक्टेंगल में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारे पास जो है एटलीस्ट 1 टर्म जो है वो यूनिक आनी चाहिए। अब हमारे पास 3 रेक्टेंगल बने हैं, एक ये, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट में कोई भी 1 नहीं था, दूसरा ये, इसमें ये वाली टर्म यूनिक है, और थर्ड ये। तो इससे आप एक्सप्रेशन जो है वो लिख लेंगे। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। इसमें हमारे पास जे कम्प्लीमेंट एंड, इस वाले रेक्टेंगल में जे कम्प्लीमेंट एंड एल कम्प्लीमेंट आया है। इस वाली वैल्यू से हमारे पास, ये सेकंड वाले से हमारे पास जे कम्प्लीमेंट एंड के की वैल्यू आई है, जे कम्प्लीमेंट एंड के की वैल्यू आई है। और हमारे पास इस वाले से, इसमें कोई भी टर्म जो है वो हमारे पास रिड्यूस नहीं हुई, तो इससे जो हमारे पास मेन टर्म आई है, या हम बोलेंगे प्रोडक्ट टर्म जो आई है, वो जे के कम्प्लीमेंट और एल आया। क्लियर। इसी तरह हम इनको इस फॉर्म में भी, जो मैंने पहले आपको बताया था, ये जो है रो फॉर्म के मैप है। सिमिलरली हम कॉलम फॉर्म के मैप भी बना सकते हैं। कॉलम फॉर्म के मैप में हम जे के इधर रख रहे हैं, रो फॉर्म के मैप में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 4 है, बट इन कॉलम फॉर्म देर आर 2 कॉलम्स एंड 4 रोज। सो हम 4 रोज इधर है तो 2 वेरिएबल को इधर रखेंगे और सिंगल वेरिएबल को इधर रख देंगे। सो जे के इधर रखेंगे, जे कम्प्लीमेंट जिस तरह ये वैल्यूज थी, जे कम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 एंड 0 और 1, एल और एल कम्प्लीमेंट इधर, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मिन टर्म बनेगी, ये एम 0 मिन टर्म बनेगी, ये 0 0 1 विच इज इक्वल टू M1, ये क्या बनेगी 0 1 0 विच इज इक्वल टू M2, ये वाली बनेगी 0 1 1 विच इज इक्वल टू M3। सिमिलरली ये बनेगी 0 0 सॉरी 1 1 0 विच इज इक्वल टू M6। सो ऐसे सारी मिन टर्म्स हम बनाएंगे। फिर नॉर्मली हम ये वाला मेथड यूज करेंगे जो कॉलम फॉर्म में, रो फॉर्म में है, रो फॉर्म के मैप मेथड। सिमिलरली हमारे पास ये ट्रुथ टेबल गिवन है और इसमें आपके पास जी की वैल्यूज जो है, आउटपुट की वैल्यू गिवन है, आप इसको के मैप में पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें रेक्टेंगल हमारे पास एक ये रेक्टेंगल बनेगा, सेकंड हमारे पास रेक्टेंगल ये बनेगा, 2 रेक्टेंगल बनेंगे। क्लियर। एक हमारे पास रेक्टेंगल ये बनेगा और एक बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करके रेक्टेंगल हम बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास, ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है कि आपके पास M0 पे 1 2 नहीं, 3 पे 4 पे 5 पे और M7 पे 1 है। तो आप इधर मैप में कहाँ कहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितने बनेंगे। सो इसमें लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें 2 पे 3 पे 6 एंड 7 पे 1 है। 2 पे 1 है, ये 21 नहीं है, ये 2 पे 1 है तो वो स्मॉल ही शो किया हुआ है। 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, 7 पे और 6 पे। सो हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगा वो 4 का बनेगा। इन 4 को हम कंबाइन करेंगे। सो हमारे पास पहले इक्वेशन जो थी बिफोर सिंप्लीफिकेशन, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में ये थी, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आई। तो हमारे पास इसको यूज करके जो नंबर ऑफ गेट्स एंड नंबर ऑफ लिटरल्स हैं, वाइड्स वगैरह, वो ज्यादा यूज हो रही हैं, और वाई एक सिंगल स्ट्रेट वाइड है। तो इससे क्या होगा, हम मिनिमाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से आप कॉस्ट क्राइटेरिया जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें एक्सप्रेशन यूज करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और के मैप से भी। के मैप से सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा इजी है। देखिए अगर इसमें एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म को कंबाइन करें या कॉमन लें, और के मैप में आपने एक रेक्टेंगल बना के वैल्यू यहाँ राइट कर दी है। सिमिलरली हमने पहले से डिस्कस कर लिया है, जो हमारे पास के मैप में लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट वैल्यू होती है वो आपस में एडजेसेंट होती हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। एंड दीज आर इनवैलिड रेक्टेंगल। हम डायगोनल में रेक्टेंगल या इस तरह से रेक्टेंगल नहीं बना सकते। डायगोनल में हम रेक्टेंगल ये भी नहीं ले सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, और इस तरह से भी रेक्टेंगल नहीं बना सकते। So this is our last slide of this lecture. We will discuss K-map for the 4 variable in our next slide.